नमस्कार। मैं अरुण कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए यूजीसी नेट का नया विषय लेकर। आज का हमारा विषय रहेगा कंपैरेटिव लिटरेचर, जिसका कोड नंबर है 72। तो हम इसको शुरू करते हैं। यूनिट 1, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर, इमर्जेंस ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर, डिफरेंस, अल्टेरिटी एंड द एथिक्स ऑफ प्लूरलिटी, limitations of the idea of national literature, theories of interpretation. Unit 2, literary historiography, source of literary history, oral, manuscriptal, scriptal and virtual. Second, approaches to literary history, introgonist and other models, problem of periodization, history of comparative literature. History of comparative literature, French, German, Russian and Tel Aviv schools. Comparative literature in India from Tagore to the present. World literature from Goethe to the present. The state of the discipline reports. Unit 4, translation in comparative context. History and politics of translation. Translation as a reception. Problem and promises of translation in multilingual situations. Ultra transability and silence. Unit 5, poetics and literary theory, Indian poetics, Sanskrit and Tamil, Persiano-Arabic traditions, Western classic literary theory. Unit 6, Indian literature first, classic, Sanskrit, Tamil, Pali and other literary traditions. Medieval formation of medieval formations of language literature, bhasha traditions in India, bhakti, sant and Sufi literature. Contact with Western Asia, Southeast Asian and South Asian literary traditions. Unit 7, Indian literature second, modernity as a concept, colonial modernity, transaction with Western forms and literary traditions. Modernity as a discourse, multiple modernism in the context of various language literatures. Discontents of modernity, literature of women, Adivasis, Dalit, minorities and others. Unit 8, literary modes, genre and themes. The literary as a conventions, model and formativity, tragedy, epic and novel. Genres, theories, taxonomy, generic marker and transformations. Themes, motifs, myths and archetypes. Unit 9, interdisciplinary and intermediality, literature and other arts, texts across medium, literary studies and other disciplines, literary dialogues. Unit 10, intertextuality, parody and pastiche, rewriting in diachronic and synchronic frames, adaptation, appropriation and assimilation. तो हमने इस सिलेबस को आज डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने कंपैरेटिव लिटरेचर, जो भी तुलनात्मक अध्ययन पूरे विश्व के अंदर कंपैरेटिव लिटरेचर के माध्यम से हमने इसको समझने का प्रयास किया कि कंपैरेटिव लिटरेचर क्या होता है, इसके अंदर कैसा फ्रेमवर्क है, इसकी हिस्टोग्राफी किस तरह की है, हिस्ट्री ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर जो दूसरे फ्रांस, जर्मनी, रशिया, तेल अवीव स्कूल है उनसे तुलना करी जाती है, और जो भारत के अंदर टैगोर से लेकर आज तक उसके बारे में। इसके अलावा हमने इसके अंदर देखा कि ट्रांसलेशन, कॉम्परेटिव कॉन्टेक्स्ट, जो ट्रांसलेशन की जाती है, जितना भी साहित्य ट्रांसलेशन के थ्रू हमारे पास पहुंचता है, तो उसके अंदर किस तरह का प्रॉब्लम रहती है। ट्रांसलेशन के अंदर अनट्रांसेबिलिटी है, कौन सी चीज़ें ट्रांसेबल नहीं हो सकती, साइलेंस है कुछ चीज़ें, उनके बारे में। फिर पोइट जो संस्कृत, तमिल, पर्शियन, वेस्टर्न जो है उनके बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद जो है क्लासिक, जो संस्कृत, तमिल, पाली एंड अदर लिटरेरी ट्रेडिशन है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा मिडेवियल, जो मध्यकाल था, उसके अंदर जो सूफी संत आए, भक्ति धारा आई, उसके विषय में। और वेस्टर्न
वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथर्न एशिया लिटरेरी ट्रेडिशन, उनके बारे में। फिर दूसरा भारतीय मॉडर्निटी क्या है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, और जो कॉलोनियल के अंदर मॉडर्निटी मानी जाती थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि भाई आज के समय के अंदर, आज जो हम देखते हैं मॉडर्निटी के अंदर डिस्कॉन्टेंट्स है, जो साहित्य महिलाओं का, आदिवासियों का, दलितों का, माइनॉरिटीज़ का, वो इस मॉडर्निटी के डिस्काउंट में, यानी कि जिसके प्रतिवाद में पैदा हुआ। फिर इसके बाद जो है मोड्स देखते हैं, जेनर देखते हैं, कन्वेंशन की ट्रेजेडी है, इपिक है, नॉवल है। तो ये जितनी भी चीज़ें, थीम्स क्या है उसकी, मोटिव्स है, मिथ्स या आर्किटाइप, पुराने समय की कोई चीज़ें हैं उसके विषय में। और इंटरडिसिप्लिनरी तो है ही सारी चीज़ें कि हम कुछ भी चीज़ें सीखते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों से संलिप्त होते, संबंधित होती है। और डायलॉग जो होते हैं, लिटरेरी डायलॉग जिसके अंदर पैरोडी है, इंटरटेक्चुअलिटी है, ठीक है, और इसको रीराइट करा जाता है, ठीक है, और अडेप्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तुलनात्मक साहित्य के अंदर पढ़ते। तो आज की वीडियो हमने इस विषय के ऊपर बनाई। धन्यवाद।